हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 का। ओके, तो उसके पहले हम इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। तो ये एक्ट का नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013 है। तो प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? तो 22 अप्रैल 2013 को मिली थी। ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ, इम्प्लीमेंट कब से हुआ? तो हुआ 9 दिसंबर 2013 से। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो 30 सेक्शंस हैं। अब इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमें विशाखा का एक केस है। विशाखा एक एनजीओ था, उसने भावरी देवी जो भावरी देवी के एक्सप्लॉइटेटर्स थे उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी अपील गई थी। तो उसके बारे में पहले हमें पढ़ना होगा, फिर ये एक्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रायर पासिंग ऑफ दिस लॉ द मैटर्स रिलेटेड टू विद द सेक्सुअल harassment was directed by the guidelines laid down by the Honorable Supreme Court in Vishaka and others versus State of Rajasthan and others. AIA 1997 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 3011, popularly known as Vishaka Guidelines. By these guidelines, Honorable Supreme Court mandatory impose some duties on the employer in respect to provide mechanism in order to provide commission of acts which are sexual harassment and further provides effective resolution of the cases with sexual harassment and prosecution of the act of sexual harassment. Under these guidelines, the Honorable Supreme Court also defined the term sexual harassment. Supreme Court further held that the guidelines and norms as provided by the Supreme Court would be strictly observed in all workplaces for the prevention and enforcement of rights to gender equality and of the working woman. The aforesaid guidelines issued by the Honorable Supreme Court of India was treated as law declared by the Supreme Court of India under Article 141 of the Constitution of India. After these guidelines were issued, it was observed by the various courts of country that the guidelines and norms by the Honorable Supreme Court was not implemented by the employer strictly at the workplace. There is a need to comprehensive, detailed legislation on sexual harassment at workplace, its prevention and redressal mechanism. After a long period of almost 16 years, Vishaka guidelines, the government of India passed some comprehensive law on sexual harassment at workplace. The Sexual Harassment at Workplace Prevention Prohibition Redressal Act 2013, Act number 14 of 2013, the statute superseded the Vishaka guidelines and prevented sexual harassment at workplace framed by the Supreme Court. तो ये केस एक हुआ था 1997 का। इस केस के बाद कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, और जो गाइडलाइंस थी वो आर्टिकल 141 में सारी कोर्ट्स ऑफ इंडिया के एज अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ये मैंडेटरी बाइंडिंग थी कि उनको ये एक्ट मतलब इसके तरीके से किसी भी केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस दी गई, जिस तरीके से एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके से ये सब चीजें मानना पड़ेंगी, जो भी रूल्स बना दिए गए थे। और ये 14 आर्टिकल में इक्वलिटी ऑफ जेंडर और इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला सिनेरियो भी इसमें आया था, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था। तो ये वाली गाइडलाइंस 16 ईयर्स तक चलती रही। फिर उसके बाद ये एक्ट आए, एक्ट ने ओवर सुपरसीड कर दिया इस केस को। तो अब हम शुरू करते हैं ये वाला एक्ट के बारे में पढ़ना। तो एक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 का एक्ट है। इसमें टोटल 8 चैप्टर और 30 सेक्शंस हैं। अब हम इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रीएम्बल में बताया है, एन एक्ट टू प्रोवाइड
protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and matters connected therewith और incidental thereto। तो ये एक्ट है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन को बचाना वर्क प्लेस पे या किसी भी तरीके की कंप्लेन वगैरह को रेसल करना जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स हैं। वेयर इज द सेक्सुअल हैरेसमेंट रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमन डिग्निटी so women to equality under Article 14 and 15 Constitution of India and her right to life to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to and practice any profession to carry any occupation, trade, business, which include right to safe environment free from sexual harassment। तो ये कैसा है कि हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, 15 और 21 ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। और 21 आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन इंक्लूड राइट टू सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट and where is the protection against the sexual harassment right to work dignity are usually recognized human rights international convention and instruments such as convention on elimination of all forms of discrimination against women which was which has been ratified on the 25th June 1993 by the Government of India, and whereas it is expedient to make provisions for giving effect to the state convention for the protection of women against sexual harassment at workplace, be enacted by the Parliament in the 64th year of the Republic as follows। तो इसका मीनिंग ये है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस डिग्निटी जो यूजुअली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स है इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट जो था एस कन्वेंशन का जो कि एलिमिनेशन करता है सारे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन के अगेंस्ट। तो जो 25 जून 1993 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये लॉ बनाना पड़ा। और वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक प्रोविजंस मतलब ये जरूरी है कि गिविंग इफेक्ट टू द स्टेट कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये जरूरी भी था कि जो वर्क प्लेस पर वुमेन है उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया जाना चाहिए था। फिर ये 63rd ईयर आया था रिपब्लिक इंडिया का। अब चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी। तो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी में ये सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा। तो चैप्टर 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। So this act may be called by the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 और it extend to whole of the India। ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है। shall come into force on such date as the central government में by notification official gazette appoint। तो इसकी डेट क्या थी? एक मिनट। हाँ तो इसकी डेट थी 9 दिसंबर 2013। 9 दिसंबर 2013 को ये आ गया था। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन है सेक्शन 2 इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। सो डेफिनेशन सबसे पहले ए डेफिनेशन में एग्रीड वुमन का मीन है इन रिलेशन टू वर्कप्लेस अ वुमन of any age whether employed or not or who is eligible to have subjected to any sexual harassment by the respondent। तो जो भी वर्क प्लेस पे कोई वुमेन है किसी भी एज की हो या तो एम्प्लॉयड है या नहीं है लेकिन किसी को भी किसी तरीके से उसकी कंप्लेन है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का विक्टिम हुई है शिकार हुई है एक बार रिस्पोंडेंट की तरफ से। फिर इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस अ वुमन ऑफ एनी एज इज एम्प्लॉयड ऑन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। और अगर किसी प्लेस पे अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं ना जैसे ये आप देखिए ड्वेलिंग प्लेस मतलब हो गया हमारा घर या हमारा हाउस।
तो कोई वुमेन है जिस तरीके से भी एम्प्लॉय है ड्वेलिंग प्लेस पे एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, किसी भी एज की कोई भी महिला अगर है जो वहाँ पे काम कर रही है, तो वो भी यहाँ पे मानी जाएगी। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीन्स है इन रिलेशन टू द वर्क प्लेस विच इज एस्टैब्लिश ओन कंट्रोल वोली और सब्सटेंशियली फाइनेंशियल फाइनेंस बाय द फंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय। सबसे पहले ए देखिए, ए में अगर है सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल या फाइनेंस है सब्सटेंशियली या बोली या ओन या कंट्रोल होती है। और अगर दूसरे में बी में दिया हुआ है अगर स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे। In relation to any workplace not covered under subsection 1 and falling within its territory, the state government। या तो अगर कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है जो कि कवर नहीं हो रहा सबसेक्शन 1 में और किसी भी स्टेट की टेरिटरी में है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से माना जाएगा। अब चेयरपर्सन सी में दिया हुआ है, तो सी में याद रखना पड़ेगा। सी में चेयरपर्सन दिया हुआ है, चेयरपर्सन मीन्स चेयरपर्सन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमिटीज, तो एलसीसी बोलते हैं। और नॉमिनेट अंडर सेक्शन 1, सॉरी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में नॉमिनेट किया गया है। फिर डी वाला है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मीन्स ऑफिसर नोटिफाइड जो कि हुआ है सेक्शन 5 में। फिर ई सेक्शन है डोमेस्टिक वर्कर। तो डोमेस्टिक वर्कर कौन है, तो मीन्स अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी इन टेम्पररी और परमानेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस, बट इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की फैमिली में छोड़ के अगर उसके घर में कोई भी हाउस होल्ड वाली काम करने वाली कोई भी रेम्यूनेशन में किसी भी तरीके की कैश या काइंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी परमानेंट टेम्पररी पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रही है, तो ये डोमेस्टिक वर्कर कहलाएंगे। अब एम्प्लॉय कौन है, तो एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ वर्क प्लेस फॉर गेटिंग फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलरली टेम्पररी एडहॉक और डेली वेज बेसिस इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट including a contractor with or without knowledge or the principal employer whether for remuneration or not, or working on a voluntary or otherwise, whether on terms of employment are expressed or implied, includes a co-worker, a contract worker, a probationer, trainee, apprentice, or called by any other such name। तो इसका ये मीनिंग ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो किसी भी तरीके से काम कर रहा है, या तो रेगुलर कर रहा है किसी वर्क प्लेस पे या टेम्पररी कर रहा है या वे डेली वेज बेस पे है इनडायरेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, या तो प्रिंसिपल को नॉलेज है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। और उसकी जो टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की या तो एक्सप्रेस है इम्प्लाइड है, इंक्लूड को वर्कर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी है। और प्रोबेशनर और ट्रेनी और अप्रेंटाइज सब इसमें इंक्लूड होते हैं, किसी भी नेम से आप उनको बोल सकते हैं। फिर जी पॉइंट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स का क्या है, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन ऑफिस branch or a unit of appropriate government or local authority or head of that department organization undertaking establishment enterprise institution office branch or unit or other officer as a state government by local authority, sorry, the appropriate government or the local authority as the case may be, may by order specify in this behalf। तो देखिए कि किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, एंटरप्राइज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, ब्रांच है, यूनिट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटी की, उसमें या तो एचओडी है जैसे द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का है, और अगर एचओडी नहीं है तो अदर ऑफिसर्स होंगे एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी में बी ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ।
फिर इन एनी वर्कप्लेस नॉट कवर्ड इन सबसेक्शन 1 एनी पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ दैट वर्कप्लेस। तो जो कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो ऊपर के सेक्शन में कवर नहीं हुई सबसेक्शन 1 में, तो उसके अलावा जो भी उसके मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए रिस्पांसिबल होगा, वो यहाँ पे एम्प्लॉयर कहलाएगा। फिर है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज management includes that person or board or committee responsible for formulation and administration of policies for such organization. In relation to workplace covered under subclause 1 and subclause 2, the person discharging contractual obligation with respect to his or her employees. तो इसमें ये बता दिया कि पहले मैनेजमेंट वाले का मतलब क्या हुआ। तो मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो भी पर्सन है किसी भी तरीके का बोर्ड में या कमिटी में जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो पर्सन। फिर इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 फॉर पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। तो अगर कोई वर्क प्लेस से कवर्ड है जो कोई भी फर्स्ट या सेकंड क्लॉज में, सब क्लॉज में, तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है अपने हिज और हर एम्प्लॉयज के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर फिफ्थ है इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अ पर्सन और अ हाउस होल्ड हुज एम्प्लॉयज और बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर द टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड और द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डोमेस्टिक वर्कर। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी रिलेशन में आप डोमेस्टिक प्लेस या हाउस से बात कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन उस हाउस होल्ड का एम्प्लॉयज है जिसने काम पे रखा है या जिसको बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट से डोमेस्टिक वर्कर के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना नंबर में, और पीरियड टाइम टाइप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्कर एम्प्लॉयड है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर, कि डोमेस्टिक वर्कर को आपने किस एक्टिविटीज के लिए रखा, ये कुछ मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो जो पर्सन अगर ड्वेलिंग हाउस प्लेस में एम्प्लॉयर है या उसकी सर्विस से बेनिफिट हो रहा है, तो वो पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉयर माना जाएगा। फिर एच में है इंटरनल कमिटी। तो आईसीसी बोलते हैं इंटरनल कंप्लेन कमिटी। तो इट मीन्स इंटरनल कंप्लेन कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। फिर लोकल कमिटी, एलसी लोकल कंप्लेंट्स कमिटी होती है, सेक्शन 6 में बताया हुआ इसके बारे में। मेंबर का मीन है मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी, तो ये मेंबर कहलाएंगे। फिर प्रिस्क्राइब का मीन्स है रूल्स, मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। फिर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। फिर रिस्पोंडेंट मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom the agreed woman has made a complaint under सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जिसके अगेंस्ट किसी कंप्लेंट की है वो रिस्पोंडेंट हो जाएगा। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये आप याद रखिए 2N में दिया हुआ है, 2N भी याद रखिएगा क्योंकि इसका ये भी पूछ सकते हैं कि किस अल्फाबेट किस क्लॉज के अंदर पे ये डेफिनेशन दी हुई है, तो 2N याद रखिएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, ये जान लीजिए। तो इंक्लूड एनी वन और मोर फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली। तो इसमें से कोई भी या तो एक या एक से ज्यादा कुछ भी तरीके का अनवेलकम एक्ट है या बिहेवियर है आपका, या तो डायरेक्ट है या इम्प्लीकेशन से है, तो उसमें से सबसे पहला कौन सा है? तो फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस, कि आप बार बार उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या कुछ उससे डिमांड कर रहे हैं, तो वो है। फिर सेकंड है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, आप उससे डिमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार सेक्सुअल फेवर से रिलेटेड। फिर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहे हैं तो वो। फिर फोनोग्राफिक आप दिखा रहे हैं उसको, तो या फिर मतलब आप एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा। फिर इसमें उसके बाद आ जाएगा
आपको इसके साथ ये पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में भी दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ उतना ही नहीं मानेंगे जितना 2N में दिया हुआ है, सेक्शन 3 में भी मानेंगे, 3A में भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये उसके साथ ही पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट की पूरी डेफिनिशन पता चलेगी। तो नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट और एनी वर्क प्लेस। द फॉलोइंग circumstances among other circumstances occurs or it present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। सबसे पहला है implied और explicit promise of preferential treatment in her employment, कि आप या तो implied या explicit मतलब एक या तो डायरेक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे आपको एम्प्लॉयमेंट में, या implied और implicit threat of detrimental treatment in her employment, या तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से धमकी दे रहे हैं कि हम आपको डेट्रीमेंटल मतलब अलग तरीके से मतलब खराब तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट में, या इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, या तो आप डायरेक्टली या इम्प्लाइडली मतलब इनडायरेक्टली आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को भी अफेक्ट करेंगे, या आपको मतलब आपको ह्यूमिलेट करेंगे, मतलब एक तरीके से हम आपको ये धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से काम करने के बाद देखिए आपको कहाँ पे जॉब मिलती है, इस सेक्टर में आप देखिए कि आपको अब आगे क्या होता है आपके साथ, ऐसा इस तरीके से आप बता रहे हैं अगर तो होगा। फिर इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग अ इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं उसके काम के साथ, या आपके उसके लिए एक इमिटेटिंग या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे उसकी हेल्थ या सेफ्टी को अफेक्ट हो जाए, तो ये भी उसी में आता है, याद रखिएगा। तो हमने 2N तक पढ़ लिया था, अब हमें O से पढ़ना है। तो वर्क प्लेस, अब वर्क प्लेस क्या है? तो वर्क प्लेस का मीनिंग है एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by the funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or the government company or a corporation or cooperative society। तो वर्क प्लेस का मतलब पहले सेक्शन में ये हुआ कि अगर वो गवर्नमेंट वाली है तो कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच जो भी है, यूनिट है, एस्टेब्लिश या कंट्रोल की जाती है, ओन की हुई है बोली या सब्सटेंशियली जो कि फाइनेंस किया जा रहा है या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, या कंपनी या कॉरपोरेशन है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, तो उसको माना जाएगा। फिर एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट वेंचर, तो अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर कैरिंग ऑन कमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस। तो अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी प्राइवेट वेंचर, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, यूनिट जो भी है सर्विस प्रोवाइडर का है, जो कमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल और एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ या सर्विस जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है, प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, तो इसमें आ जाएगा। फिर हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम बीच में आ जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन और गेम्स वेन्यू whether residential or not used for training, sports or other activities related thereto। फिर any workplace visited by employee arising out of or during the course of employment including transportation by the employer
फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। और फिर ड्वेलिंग प्लेस एंड हाउस भी आ जाएंगे लास्ट में। तो ये सारे वर्क प्लेस होते हैं। आप याद रखिए कि वर्क प्लेस में गवर्नमेंट का सेक्टर है तो गवर्नमेंट के सारे जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट है तो प्राइवेट कुछ भी, फिर हॉस्पिटल्स भी, नर्सिंग होम भी आएंगे, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूट है या स्टेडियम है, कोई भी गेम का वेन्यू है तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर जो कि प्लेस है जो कि एम्प्लॉय को विजिट करना पड़ती है अपने कर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अगर कहीं पे जाने के लिए बोला वहां पे कुछ भी होता है तो आ जाएगा। फिर ड्वेलिंग प्लेस और हाउस आ जाएगा, जो कि अपना जैसे घर है, घर में अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर काम करता है तो यहाँ आ जाएगा। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिलेशन टू वर्कप्लेस मींस एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स or providing service for any kind whatever, and where the enterprise employs worker the number of workers are less than 10। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये है, या तो कोई भी जो भी होगा वो या तो अकेले ही कंट्रोल हो रहा है इंडिविजुअल से, या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर से कंट्रोल हो रहा है जो कि एक इंडिविजुअल आदमी ही है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी चीज है जो किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने यहाँ पे वर्कर को अपॉइंट करता है या नहीं, लेकिन उसके यहाँ पे टोटल जो वर्कर्स हैं वो लेस देन 10 है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 है नो वुमेन आर सब्जेक्ट टू एनी हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो द फॉलोइंग circumstances among the circumstances when it occurs are present in relation to or unconnected with any act or sexual harassment may amount due to harassment। सेक्सुअल harassment का नो हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर बता देता हूँ फिर से कि कोई भी जो वुमेन है उसको किसी भी तरीके का सेक्सुअल harassment नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे, और उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें से और अदर सर्कमस्टेंसेस भी दिए हुए हैं जिससे ये हो सकता है। तो ये कनेक्टेड है उस किसी भी तरीके के बिहेवियर से जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, या उससे रिलेटेड कुछ मैटर्स है, जैसे कि इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट implied or explicit promise of preferential treatment in her employment, implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment, or implied or explicit treatment about her present or future employment status, or interference with her work, or creating intimidating or offensive or hostile work environment for her, or humiliating treatment to affect her health and safety। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब हम चैप्टर 2 भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या होती है और इसमें क्या 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 लोग होंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 4 से स्टार्ट होती है। सेक्शन 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो एवरी एम्प्लॉयर ऑफ द वर्कप्लेस शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग कंस्टिट्यूट अ कमिटी नोन एज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, इसको आईसीसी भी बोलते हैं। तो अब आईसीसी में कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द offices and administrative units of workplace are located in different place or divisional or subdivisional level, the ICC, sorry IC मतलब internal committee shall be constituted all administrative on it units or offices। So internal complaint committee shall consist of the following member nominated by the employer, namely। सबसे पहले कौन होगा, तो पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा। हु शैल बी वुमेन एम्प्लॉयड एट द सीनियर लेवल ऑफ वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग एम्प्लॉयज। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले सीनियर वुमेन होगी जो कि सीनियर लेवल पे काम करती है वर्क प्लेस पे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें से। और अगर उसमें से कोई भी सीनियर लेवल की नहीं मिली, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है दैट इन केस अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल द प्रेसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में हम कहीं और से जो उसकी सीनियर लेवल की वुमेन जो भी उससे ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेटेड है,
तो वहाँ से हम ढूँढ के उनको बना देंगे। अब प्रोवाइडेड फर्दर भी दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट any in case the other offices or administrative unit or a workplace do not have a senior level woman employee, the presiding officer shall be nominated among the other workplace of the same employer or other department organization. अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी नहीं मिली और किसी अदर ऑफिस में भी नहीं मिली ऐसी कोई सीनियर वुमेन, तो जो उनकी सीनियर लेवल एम्प्लॉय नहीं है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको नॉमिनेट किया जाएगा उसी किसी अदर वर्क प्लेस से जो कि सेम एम्प्लॉयर या उसी अदर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया है, उधर से उसको अपॉइंट कर लेंगे। फिर नॉट लेस देन 2 members among the employees preferably committed to the cause such women to have had experience in the social work or have legal knowledge। तो कोई भी 2 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 members from among employees preferably committed to cause the women to have the experience in the social work, भी जिसको पास हो और लीगल नॉलेज भी हो। फिर 1 member from amongst non-social organization or association committed to cause the woman or a person familiar with the issues related to sexual harassment। तो एक मेंबर होगा कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ या एसोसिएशन का जो कमिटेड होगा कॉज द वुमेन और पर्सन फेमिलियर विद द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। फिर प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। तो जितने भी यहाँ पे लोग नॉमिनेटेड हुए हैं उनमें से आधे तो वुमेन होना चाहिए। तो कौन कौन से, सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी जो कि सीनियर मोस्ट वुमेन होना चाहिए लेवल में काम करने वाली वहाँ पे। फिर 2 मेंबर होना चाहिए जिसमें से एक वुमेन हो जिसको एक्सपीरियंस हो सोशल वर्क का और लीगल नॉलेज हो। फिर 2 फिर 1 मेंबर होगा एनजीओ का। ओके, तो और उसमें से जितने भी होंगे उनमें से हाफ जो मेंबर्स हैं वुमेन होना चाहिए। फिर थर्ड में दिया हुआ था प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फॉर द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एज स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो भी इसमें मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स कब तक के लिए हो पाएंगे, 3 years के लिए हो पाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो भी मेंबर हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे जिस दिन से उनका नॉमिनेशन हुआ एज स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर। फिर जो मेंबर अपॉइंटेड हुए, द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन शैल बी पेड सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनल कमिटी बाय द एम्प्लॉयर एज द केस में बी। तो जो भी नॉन एनजीओ या एसोसिएशन के जो मेंबर होंगे उनको फीस दी जाएगी और अलाउंस दिए जाएंगे जो कि उन्होंने अपने होल्डिंग्स में मतलब जो उनको लगता है ना, जो भी उन्होंने प्रोसीडिंग्स में अपना टाइम इन्वेस्ट किया इंटरनल कमिटी की, तो उसको एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करेगा जैसा वैसा। अब फिफ्थ क्लॉज में दिया हुआ है वेयर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी कॉन्ट्रीवेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 के प्रोविजंस जो बाद में हम पढ़ेंगे वो दिए हुए हैं, अगर उसको कॉन्ट्रीवेन करेगा और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस और एन इंक्वायरी ऑफ एन ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। मतलब या तो वो किसी भी तरीके का ऑफेंस से कन्विक्ट हुआ जो कि सेक्शन 16 हम बाद में पढ़ने वाले हैं उसमें, या फिर किसी भी तरीके का उसके अगेंस्ट कन्विक्शन हुई है या उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी शुरू हो गई है इस लॉ में जो भी टाइम बीइंग इन फोर्स चल रही है, और if found guilty in any disciplinary proceeding or disciplinary proceeding
pending against him or so abuse his position as to render continuous the office of prejudicial to the public interest। या फिर उसने अपनी कुछ भी तरीके की अब्यूज करके पोजीशन को अपने आप को कंटिन्यूस कर लिया है, कंटिन्यूस किस चीज में, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजुडिशियल कंडीशन बना दी है, उसने अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचा लिया अब्यूज करते हुए अपनी पोजीशन को कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये प्रिजुडिशियल है। Such presiding officer or a member as a case may be shall be removed from the committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर्स ने ऐसा कुछ काम किया है जो ऊपर हम लोगों ने बताया हुआ है तो अब उनको रिमूव कर दिया जाए कमेटी से और उनकी जो वैकेंसी होगी जो फ्रेश या कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको हम नॉमिनेशन से फिल कर देंगे फ्रेश नॉमिनेशन से, जो कि चैप्टर के प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है उस तरीके से। फिर हम चैप्टर 3 पढ़ लेते हैं। चैप्टर 3 में है एलसीसी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जैसे हम ऊपर आईसीसी पढ़ रहे थे, एलसीसी है जिसको बोलते हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, तो नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में notify a district magistrate or additional district magistrate or a collector or deputy collector as a district officer as for every district to exercise powers or discharge function under this act। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करके या तो जो डीएम है या एडीएम है या जो कलेक्टर हैं और उनको डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाने के बाद उनको सारी पावर्स दे देंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी पावर्स फंक्शन को डिस्चार्ज करना है। अब सेक्शन 6 में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकल कमिटी। तब लोकल कमिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कंस्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न अ कमिटी इज नोन एज लोकल कमिटी टू रिसीव कंप्लेंट। तो जो भी डीओ है, इसमें इसमें डीओ बोल देंगे, जो भी ऊपर ये पर्सन को डीओ बना दिया गया है तो डीओ की ड्यूटी होगी कि वो लोकल कमिटी को कंस्टिट्यूट करेंगे। जो कि कंप्लेन लेगी सेक्सुअल हरासमेंट फॉर एस्टेब्लिश सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम द establishments where the internal committee is not constituted due to having less than 10 workers if the complaint is against the employer himself। तो इस पे कमिटी के पास कंप्लेन कब आएगी, जब या तो सेक्सुअल हेरेसमेंट वहां पे हुआ है जहाँ पे इंटरनल कमिटी है नहीं, या फिर इंटरनल कमिटी क्यों नहीं है वहां पे क्योंकि वहां 10 से कम वर्कर्स हैं, और या फिर जो कंप्लेन है वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही कंप्लेन है तो इस वाली कमेटी के पास वो कंप्लेन आएगी। फिर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन ऑफ नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील और तहसील इन रूरल और अर्बन एरिया, ट्राइबल एरिया सॉरी, एंड अ वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी in the urban area to receive complaint and forward the same to the concerned local committee within a period of 7 years। तो जो डीओ है वो हर तालुका, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर रूरल और ट्राइबल एरियाज में, वार्ड में, म्यूनिसिपल एरिया में, अर्बन एरियाज में कहीं पे भी एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, और नोडल ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो जो सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं लोकल कमेटी को फॉरवर्ड करेंगे 7 डेज के अंदर जब भी उनको कंप्लेंट मिलती है। अब ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया हुआ थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट में बताया हुआ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकल कमिटी शैल एक्सटेंड टू द एरियाज डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कंस्टिट्यूटेड। तो इसकी ज्यूरिडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी जहां इसको बनाया गया है। अब सेक्शन 7 है कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमिटी। तो द लोकल कमिटी शैल कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स नेमली। तो लोकल कमिटी में इतने सारे लोग होंगे, ये बताया हुआ है कि उनके जो है वो नीचे दिया हुआ है, मतलब नेमली
ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि अ चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड अमंग द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। तो एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन कौन होगी? तो चेयरमैन जो नॉमिनेट होंगी, जो एमिनेंट सोशल वर्कर्स हैं वुमेन, उनकी फील्ड में से, जिन्होंने कमिटमेंट की है कि वो वुमेन के लिए लड़ेंगी, वुमेन के कॉज के लिए लड़ेंगी, शिकायतों के लिए लड़ेंगी। फिर वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड अमंग्स द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी जो तालुका या ब्लॉक या तहसील लेवल पे या वार्ड लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट के में काम कर रही हैं, उसमें से कोई वुमेन होंगी, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। फिर टू मेंबर्स ऑफ वुम एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन, तो दो लोग होंगे और उसमें से एक वुमेन होगी। टू बी नॉमिनेटेड अमंग सच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और द पर्सन फेमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हरेसमेंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड। तो अब देखिए कि दो मेंबर्स होंगे, उसमें से एक वुमन होना चाहिए जो कि एनजीओ या और एसोसिएशन जो कि वुमेन के कॉज से रिलेटेड है, जो कि वुमेन की कॉज के लिए कमिटेड है, वो और ये फैमिलियर है जो भी इश्यूज रिलेटेड होते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट से, तो उनको अपॉइंट किया जाएगा। और फिर देखिए उसके बाद है प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शुड बी प्रेफरेबली हैव द बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। तो उसमें से भी कोई एक होगी जिनको प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास बैकग्राउंड इन लॉ है या लीगल नॉलेज है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट at least one of the nominees shall be a woman belonging to the scheduled caste and scheduled tribes or the backward classes or minority community notified by the central government from time to time। तो जो इसमें से नॉमिनेटेड लोग उसमें उसमें से एटलीस्ट वन जो होगी वो वुमेन किससे होंगी? या तो एससी या एसटी कम्युनिटी से होंगी, अदर बैकवर्ड क्लास से होंगी, जो माइनॉरिटी को कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जो उनकी कम्युनिटी है टाइम टू टाइम उनसे रिलेटेड। फिर कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद स्पेशल वेलफेयर और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो। तो जो भी कंसर्न ऑफिसर है जो कि सोशल वेलफेयर करता है, चाइल्ड या वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट का, वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो सदस्य हो जाएगा। फिर द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो जो चेयरपर्सन है या जो भी मेंबर है लोकल कम्युनिटी का, सॉरी लोकल कमिटी का, वो नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स मतलब सॉरी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स है, 3 ईयर से ज्यादा तक काम नहीं कर पाएगा जिस दिन से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, एज में बी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जब डीओ ने जिस दिन से अपॉइंट उसको किया तब से वो 3 साल तक काम कर पाएगा। कौन? जो भी चेयरमैन या मेंबर है एलसी का। अवेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी। अब क्या उसने यही वो जो ऊपर हम पढ़ते आए हैं वैसे यहाँ पे कि कॉन्ट्रीब्यूट किया है किसी प्रोविजन को जो सेक्शन 16 में दिया हुआ है, या फिर वो कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस का, या उसके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी शुरू हो गई है किसी भी लॉ में इससे रिलेटेड टाइम बिंग इन फोर्स में, या फिर वो गिल्टी पाया गया है, फाउंड गिल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम, और है सो अब्यूज्ड इन हिज पोजीशन रेंडर्स कंटिन्यूस इन ऑफिस प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। और उसने अपनी पोजीशन का बहुत गलत फायदा उठाते हुए वो कंटिन्यू एक ऐसी तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट है। The chairperson or officer, as the case may be, shall removed from the committee, and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by the present nomination in accordance with the provisions of this section। तो जो भी मेंबर ये सब काम जो ऊपर दिए हुए हैं, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसको उस कमेटी से निकाल दिया जाएगा और उसकी वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी जो कुछ भी है वो फ्रेश नॉमिनेशन से फिल्ड कर दी जाएगी।
अब जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं लोकल कमिटी के, अदर देन द मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज डी, क्लॉज बी एंड डी में जो भी, क्लॉज बी में कौन है कि जो तालुका वाले मेंबर को छोड़ के, या जो कुछ भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है उसको छोड़ के, जो भी आदमी है जो कि सबसेक्शन 1 में दिए हों, सबको ही फीस मिलेगी और अलाउंस मिलेंगे, जो कि वो अपने होल्डिंग कर रहे हैं ऐसी पोजीशन को, प्रोसीडिंग चला रहे हैं जो भी एलसीसी की, एज बी प्रिस्क्राइब, तो शैल बी एंटाइटल्ड टू फीस और अलाउंस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकल कमिटी एज बी प्रिस्क्राइब। फिर है सेक्शन 8। सेक्शन 8 है ग्रांट्स एंड ऑडिट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू appropriation made by the parliament by law in this behalf make the central government grant such sums of money as central government may as things could be utilized for the payment of allowances referred to in subsection 4 of section 7। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ड्यू अप्रोप्रिएशन करके सारे पार्लियामेंट से परमिशन लेके कुछ एक पार्लियामेंट में एक लॉ बना के इसके बिहाफ में कुछ फंड बनाएगी, स्टेट को दे देगी, स्टेट को ग्रांट दे देगी, कुछ सम या कुछ मनी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये ठीक होगा यूटिलाइज करने के लिए, इस पर्पस के लिए कि जो फीस या अलाउंस जो पेमेंट करना है, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 में जो बताया हुआ है उस फीस को पे करना है, तो वो उसको कर देंगे। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक एजेंसी को सेटअप करेंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही फंड आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटअप है एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट्स मेड अंडर सबसेक्शन 1 टू दैट एजेंसी। तो वो एक एजेंसी को सेटअप करके सारे जो फंड उनको मिले हैं वो सबसेक्शन 1 से जो उनको फंड मिले हैं वो इस ग्रांट को ट्रांसफर कर देंगे एजेंसी को। फिर द एजेंसी शैल पे टू द डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सच सम may be required for the payment of fees or allowance referred to in subsection 4 of section 7। तो जो भी एजेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीओ को पे करेंगी जो भी सम उनको लगता है कि रिक्वायर है पेमेंट ऑफ फीस के लिए, अलाउंस के लिए, जो कि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 में रेफर किए गए हैं। फिर फोर्थ है द अकाउंट ऑफ द एजेंसी रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 shall be maintained and audited in such manner as may in consultation with the accountant general of the state। तो जो भी अकाउंट होंगे एजेंसी के वो सबसेक्शन 2 में ऐसे मेंटेन किए जाएंगे, शैल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब मैंडेटरी है, शैल बी मेंटेन एंड ऑडिटेड इन सच अ मैनर एज मे बी कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो भी अकाउंटेंट जनरल है उसकी कंसल्टेशन के साथ वो ऑडिट और मेंटेन किए जाएंगे जो भी स्टेट के हैं, और मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ द अकाउंट of the agency shall furnish to the government before the such date as may prescribed its audited copy of the accounts together with the audited report thereon। तो जो भी पर्सन है, जो द टू बी प्रिस्क्राइब द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट की कस्टडी में है एजेंसी के, उसको फर्निश करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट को उस डेट से पहले जो भी प्रिस्क्राइब की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी को और ऑडिट रिपोर्ट के साथ, मतलब ऑडिट अकाउंटेड कॉपी, मतलब ऑडिटेड कॉपी के साथ ऑडिटेड रिपोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट को वो देगा जिस आदमी को प्रिस्क्राइब किया गया है वो आदमी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर 4।